Hello, Namaste, Sat Sri Akal, and Walaikum Salam to all my students, and welcome you all to your own Biocademy where biology is made simple. Now, today we are going to start with chapter number 2, Biological Classification, and the topic is System of Classification. We will start with the classification system and we'll go a little back in the history where the early attempts of classification were made. First time the classification was done by Aristotle, and he was a very genius person, and he classified the plants and animals. Plants on the basis of height, that is herbs which are less than 2 centimeters and more than 2 centimeters, shrubs and trees. Animals on the basis of RBCs, present or absent. If RBCs are present, he called them as anima. Those organisms were called as anima, and if the RBCs are present, he called them anima. So that means RBCs अगर present हैं तो उन organisms को it was called as anima, and अगर RBCs absent है तो it is called as anima. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर RBCs नहीं है इसका मतलब है एनीमिया हो गया. जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस बंदे को बोलते हैं कि इसको एनीमिक है. सो रिमेंबर लाइक दिस कि RBCs absent तो anima, RBCs present to enema. Okay, so this was the early attempts of the classification. Then comes artificial system of classification. This system was given by Carl Linnaeus, who also developed binomial nomenclature, and Carl Linnaeus' artificial system of classification was based on observations or observable characters which were having non-evolutionary features. He classified the plants on the basis of vegetative as well as reproductive features. Vegetative means roots के presence, stem के presence and leaf के. So in सबके characteristic features को he considered, and in reproductive features he took the floral verse, that is presence of stamens and carpels. बहुत सारे scientists artificial system of classification से associated थे, जैसे थियोफ्रास्टस हैं, एरिस्टोटल हैं, बोहेन हैं, लीनियस हैं. But the main contribution was of Carolus Linnaeus, and he is the person who is most associated with artificial system of classification. Next comes natural system of classification. Now, natural system of classification was based on the morphological, that is external, morphological characters, anatomical characters, ultrastructure of the organism, cytology, embryology, etc. And because so many characters were considered, बाहरी external characters भी, internal characters भी, उसके embryological characters भी, उसके cell के structures भी, सब कुछ considered था. So इसलिए इस natural system को two-dimensional system भी कहा जाता है. जॉन रे was the person जिन्होंने पहली बार इस वर्क को स्टार्ट किया, but the most accepted system is Bentham and Hooker system of classification. Bentham and Hooker system of classification is used maximally, and this classification system was published in the book Genera Planetarum in 3 volumes. After natural system of classification was phylogenetic classification system, which is also a 3-dimensional system of classification because यहाँ पे evolutionary relationship को भी importance दिया गया था. And ये system, it was given by Engler and Prandtl, but the most accepted system is
by Hutchinson and Takhtjaan. These were the people जिन्होंने इस सिस्टम को दिया था और इनका सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है. कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी वॉज गिवन बाय हैकल एंड जो टर्म था दैट वॉज गिवन बाय लामार्क. आफ्टर the classification system, now we will see there are different branches of the taxonomy. ये जो branches of taxonomy है इसमें सबसे पहले let's see cytotaxonomy. Now what is this cytotaxonomy? If we are going to talk about cytotaxonomy, cytotaxonomy is the branch of taxonomy which is also called as karyotaxonomy. इस सिस्टम को कैरियोटैक्सोनॉमी भी बुलाते हैं. साइटोटैक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोटैक्सोनॉमी. यहाँ पर साइटोटैक्सोनॉमी और कैरियो मीन्स द क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर मियोसिस के दौरान, ये सारी कुछ स्टडी की जाती है एंड दिस कम्स अंडर साइटोटैक्सोनॉमी. नेक्स्ट कम्स इज कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी in which we are going to study the chemical properties of the particular structure या फिर genetic material like DNA, RNA, proteins क्या क्या present होता है उस organisms के अंदर. So all the different types of the chemical behavioral pattern or chemical nature is studied under chemotaxonomy. For example, cell wall of डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक आर्कियोबैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है एंड प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होता है. दैट इज यूबैक्टीरियाज में पेप्टाइडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होता है सेल वॉल में एंड फंगस में ये रिप्लेस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द काइटिन. दैट मीन्स काइटिन की सेल वॉल बनी होती है फंगस में एंड मॉडर्न बैक्टीरियाज में पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है. आर्कियोबैक्टर में कोई पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होता है. नेक्स्ट कमिंग टू न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में इट इज लिस्टिंग द ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच डिविजन इज डन. ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स. सारे के सारे ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स all possible characters are going to be listed. So we can say quantification of the characters and develop algorithm for classification. अब algorithm के हिसाब से जब हम इस characters को develop करते हैं तो हम उसको numerical taxonomy बोलते हैं. ये सारी के सारे characters हम coded form में डाल देते हैं कंप्यूटर के अंदर and there is a statistical program which is running in the computer showing all the different types of the characters. Coming to the next one, that is dendrogram, cladogram, turils क्या होते हैं. Dendrogram, it is a family tree that is based on the numerical taxonomy. मतलब क्या है कि डेंड्रोग्राम नंबर के हिसाब से एक फैमिली ट्री बनाते हैं, उस हिसाब से उसको बोलते हैं. न्यूमेरिकल के हिसाब से, नंबर के हिसाब से जब करते हैं तो उसको फैमिली ट्री या फिर डेंडोग्राम्स बोलते हैं. क्लैडोग्राम सेम टाइप है. डेंडोग्राम क्लैडोग्राम में डिफरेंस बहुत कम है. ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से हम ब्रांचिंग पैटर्न या फैमिली ट्री बनाते हैं. सो ये ब्रांचिंग पैटर्न एवोल्यूशन के हिसाब से होता है, हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप्स के हिसाब से. एंड ट्यूरिल्स जो होते हैं, दीज ट्यूरिल्स आर the different types of the taxonomy you can say, in which we will say alpha taxonomy which is based on morphological सिर्फ external characters के हिसाब से, beta taxonomy internal characters के हिसाब से, omega taxonomy biochemical features के हिसाब से like DNA के हिसाब से, RNA के हिसाब से, proteins के हिसाब से etc. सबसे पुरानी जो है दैट इज़ अल्फ़ा टैक्सोनॉमी और सबसे एडवांस जो है दैट इज़ ओमेगा टैक्सोनॉमी. सो यू कैन से दैट अल्फ़ा, बीटा एंड द ओमेगा, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैक्सोनॉमीज. सबसे एडवांस्ड है ओमेगा टैक्सोनॉमी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ फाइलोजेनी.
It is also a branch of taxonomy. Phylogeny, it is नाम से पता चलता है कि phylogeny का मतलब है evolutionary relationship of the organisms, and it is a very important tool in classification by morphological status and relationship between the groups. So we can develop the relationship between the different groups. Example, Carl Woos का 3 domains of life. It is a very best example of phylogeny. Coming to the next one, that is the last branch of the taxonomy, that is DNA barcoding. DNA barcoding, it is based on the DNA sequencing. टिश्यू में से एक सैंपल में से हम डीएनए निकालते हैं और फिर उसका सीक्वेंस करते हैं, तो दैट इज़ डीएनए बारकोडिंग. हम क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. वी कलेक्ट द डीएनए सैंपल्स, वी कलेक्ट द डीएनए सीक्वेंसेस and we match the sequence with the sequences which are present in the library. और उसके बाद हम देखते हैं कि how which organism is going to be present in which group. This DNA barcoding is also very important to help us for protection of endangered species and preservation of natural resources, पेस्ट कंट्रोल. इन सभी में हम डीएनए की हेल्प से हम अलग अलग स्पीशीज़ की उनकी इम्पोर्टेंस को हम डेवलप कर सकते हैं. वेक्टर आइडेंटिफिकेशन, हेल्थ प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम डीएनए बारकोडिंग की हेल्प से करते हैं. सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द टैक्सोनॉमी. द नेक्स्ट वन, नाउ we'll come to biological classification. Now, biological classification is very important because सबसे पहले किंगडम सिस्टम जो दिया गया था, पहली बार किंगडम सिस्टम दिया गया था बाय कैरोलस लीनियस. उन्होंने फर्स्ट टाइम एक स्टेटस दिया, किंगडम का स्टेटस दिया था प्लांट्स और एनिमल्स को, and he called them as kingdom Animalia and kingdom Plantae. पहली बार एक स्टेटस दिया गया किंगडम नाम का. It was given by Carolus Linnaeus. उसके बाद आया 3 kingdom system, मतलब kingdom Plantae, kingdom Animalia. उसके बाद 3rd kingdom इसमें ऐड कर दिया गया, that was kingdom Protista. So 3 kingdom system was given by Haeckel. उसके बाद एक और किंगडम ऐड कर दिया गया, दिस वॉज कॉल्ड एज किंगडम माइकोटा बाय कोपलैंड. कोपलैंड ने किंगडम मोनेरा को ऐड किया. पहले उन्होंने माइकोटा बोला था, बाद में एलन एंड दोहांती ने इस माइकोटा को नाम दिया मोनेरा, दैट इज किंगडम मोनेरा. दिस इज 4 किंगडम सिस्टम, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा वॉज एडेड. देन केम द मोस्ट accepted, most famous 5 kingdom system that was given by R.H. Whitaker. R.H. Whitaker ने फंगस को ऐड कर दिया. So kingdom fungi was added. So Plantae, Animalia, Protista, Monera and fungus was added to it. So it became 5 kingdom system. 1, 2, 3, 4, 5 kingdom system. And then came 6 kingdom system that was given by कार्ल वूज. कार्ल वूज ने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए थे. 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में उन्होंने ऐड कर दिया एक और सिस्टम को, दैट वाज द बैक्टीरियाज. अब इन्होंने क्या किया? 6 किंगडम सिस्टम, लेट्स स्टडी, विच वॉज गिवन बाय कार्ल वूज एंड ही कॉल्ड दिस सिस्टम एज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. तो इन्होंने क्या किया? 3 domains of life. Now just see 3 domains of life. ये जो सिस्टम था, this was given by Carl Woese in 1990 में. इन्होंने ये 6 kingdom system दिया था, 6 kingdom system. इसमें उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे जो ग्रुप्स थे, कौन से थे? किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, उसके बाद आया किंगडम प्रोटिस्टा,
उसके बाद आया किंगडम मोनेरा, उसके बाद आया किंगडम फंजाई। सो टोटल जो थे 1 2 3 4 5। अब इन्होंने क्या किया, एक और चीज़ ऐड की, दैट वाज कि इन्होंने किंगडम मोनेरा को, दिस किंगडम वॉज डिवाइडेड, किंगडम मोनेरा को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किंगडम मोनेरा में उन्होंने ही कॉल्ड दिस एज आर्किए बैक्टीरियाज और दूसरे को उन्होंने बुलाया यू बैक्टीरियाज। तो उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया दो भागों में, दो सब किंगडम्स में और दो किंगडम्स में बोल दिए, आर्किए बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्किए बैक्टीरिया में आ गए ओल्ड बैक्टीरियाज एंड यू बैक्टीरियाज में आ गए दैट इज मॉडर्न बैक्टीरियाज और न्यू बैक्टीरियाज। फाइन। अब टोटली उन्होंने क्या कर दिया कि इस पूरे सिस्टम को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। बाकी के जो बचे हुए थे, उन्होंने बाकी जो बचे हुए जितने भी थे उनको सब कुछ क्या कर दिया, 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, पूरे के पूरे। सो अब हम इसको बोलेंगे टोटल, जो अब मैं बोलूँगी उसको, दैट इज 3 डोमेन्स को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किन में? एक तो डाला उन्होंने आर्किए बैक्टीरियाज, ओके, एंड नेक्स्ट वन उन्होंने डाला दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज यू बैक्टीरियाज, एंड यू बैक्टीरियाज के बाद आ गए दैट इज यू कैरियोट्स। नाउ दीज आर द 3 डोमेन्स। यहाँ पे आ गए प्रिमिटिव दैट इज प्रिमिटिव और ओल्ड बैक्टीरियाज, एंड यहाँ पे आ गए उनके न्यू और दैट इज एडवांस्ड बैक्टीरियाज। इस जगह पे यूकैरियोट्स में उन्होंने पूरे के पूरे बाकी के 4 किंगडम्स डाल दिए, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो इन टोटल 6 किंगडम सिस्टम बन गए, एंड दीज वेर द 3 डोमेन्स में इन्होंने पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दिया कार्ल वूज ने। ओके, नेक्स्ट। अब उसके बाद वी विल जस्ट सी कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम हमने जो किया है, 5 किंगडम सिस्टम विच वॉज गिवन बाय R.H. विटकर, विल सी लिटिल बिट इन डिटेल। अब इसमें R.H. विटकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, 5 किंगडम सिस्टम दिया, इसमें इट वॉज बेस्ड ऑन 5 criterias. 5 kingdom system was based on 5 criterias. Before that, we will just see the tree which was given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने सबसे नीचे किंगडम मोनेरा को रख दिया, किंगडम मोनेरा। उसके बाद आया किंगडम Protista, and after that was kingdom Fungi, then kingdom Plantae, and then kingdom Animalia. ये तीनों किंगडम्स उन्होंने एक ही साथ रख दिए, एक ही लेवल पर रख दिए थे। किंगडम मोनेरा was present at the lower level, and this kingdom monera was prokaryote. It was prokaryotic because it was not having a well developed nucleus. वहाँ पे DNA exposed था, DNA was directly present in the cytoplasm. और उसके बाद this was unicellular, single celled organisms थे, ये जितने भी organisms थे they were single celled organisms.
इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज मे बी ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेट्रोट्रॉफिक भी थे। तो ऑटो और हेट्रो दोनों तरह का न्यूट्रिशन ये दिखा रहे थे। ओके, ये मेन चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा पे अगर जाते हो तो आप देखो किंगडम प्रोटिस्टा दिस वाज यूकैरियोट, मीन्स अब ये इनके अंदर न्यूक्लियस डेवलप हो चुका था, बट दीज वेर स्टिल यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्ड ही ऑर्गेनिज्म थे। सिर्फ फर्क था कि अब यहाँ पर ये इनका न्यूक्लियस डेवलप हो गया है। नेक्स्ट थिंग अबाउट प्रोटिस्टा वाज कि वेदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और दे आर हेटेरोट्रॉफिक। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दीज प्रोटिस्टेंट्स वेर ऑल्सो showing heterotrophs. Mostly they are going to be heterotrophs. Okay, now the next thing. अब यहाँ पे अगर हम प्लांटे की बात करते हैं तो प्लांटे, फंगस एंड एनिमेलिया, all of them are multicellular organisms. All of them are multicellular organisms. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि these are multicellular organisms, these are also multicellular organisms, these are also multicellular organisms, these are also eukaryotes, these are also eukaryotes, these are also eukaryote, but these are autotrophs, these are heterotrophs, these are also heterotrophs, but फंगस हेट्रोट्रॉफ्स है बट मोस्टली दे आर गोइंग टू बी सैप्रोफाइट्स, मोस्टली ये सैप्रोफाइट्स है, सम मे बी पैरासाइट। ओके, सो दे मे बी सैप्रोफाइट्स और सम मे बी पैरासाइट्स, बट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड दे आर हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अगर लेवल वाइज देखेंगे तो दिस वॉज एट फर्स्ट लेवल, दिस वॉज अ सेकेंड लेवल एंड दीज थ्री वेर एट थर्ड लेवल, fungus, plante and animalia. Okay, so this is in general the classification that was given by R.H. Whitaker. Now if you see in detail, we'll see कि ये जो kingdom था, 5 kingdom system, it was given by R.H. Whitaker. He added kingdom fungi. The criteria for classification was whether the organism having the structure, complex structure of whether prokaryotic or eukaryotes, means complexity of the cell structure, prokaryotes हैं या eukaryotes हैं, body organization unicellular है या multicellular है, nutrition, mode of nutrition autotrophic है या heterotrophic है, reproduction asexual है या sexual है, या फिर phylogenetic analysis मतलब either वो primitive हैं या advanced हैं, बहुत old है या फिर नए हैं। तो इस इन 5 criterias were used in 5 kingdom system. पहला kingdom, kingdom MONERA. As I said, they are having the first level of organization. MONERA में maximum different types of bacteria आते हैं. These are the organisms which are dominating the earth from द स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ, मतलब सबसे पहले जब धरती बनी थी तब यही ऑर्गेनिज्म सबसे पहले धरती पर आए थे एंड सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने धरती पे राज किया है तो है किंगडम मोनेरा। ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, हर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर जाते हैं। सो यू कैन से दे आर ओमनी प्रेजेंट, सब जगह, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बाहर, हर जगह ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं विच कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। दे आर प्रोकैरियोट्स, मीन्स द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ओके, एंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्यूलर है, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और इनका जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है।
बट याद रखना है कि देर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्सेंट इन दिस। यहाँ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। दे कैन बी दी फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, केमिकल की हेल्प से बना सकते हैं खाना, लाइट की हेल्प से। एंड किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस किंगडम में आता है वो है बैक्टीरियाज। किंगडम प्रोटिस्टा दे आर स्टिल यूनिसेल्यूलर, एक ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट दे हैव न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो अब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। एंड सेल वॉल कहीं प्रेजेंट है, कहीं नहीं प्रेजेंट है। डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कई जगहों पे, अमीबा में डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट इफ़ यू सी क्लेमाडोमोनास, पायरोगायरास, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यूनिसेल्यूलर है। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, बट दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ से होलोजोइक मोड डेवलप हो गया था। किंगडम फंजाई और फंगाई, अगेन दीज आर यूकैरियोट्स। अब इसके बाद सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स एक ही है और वो है किंगडम मोनेरा। बाकी प्रोकैरियोट्स के बाद, किंगडम मोनेरा के बाद चारों के चारों किंगडम्स आर यूकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस डेवलप हो चुका था। सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड दे आर मल्टी सेल्यूलर, बट ट्रू टिश्यू नहीं बना है। अब ये लूज टिश्यू के बने हुए हैं जिसको हम बुलाते हैं माइसीलियम। न्यूट्रिशन मोस्टली दे आर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, दे आर एक्टिंग एज डिकम्पोजर्स, सड़ी गली चीज़ों पे रहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये सर्वाइव करते हैं। उसके बाद आता है किंगडम प्लांटे, यूकैरियोट्स हैं, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मल्टी सेल्यूलर है, एंड इनका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल। अभी इनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं बना हुआ है, so they don't have organ system. They are main producers because they are autotrophs. Kingdom Animalia, the highest kingdom, most advanced kingdom, where they are eukaryotes. Cell wall absent होती है, nucleus present है, nuclear membrane present है, and body organization, they have now organ system level organization. They are heterotrophs. They are directly or indirectly depending on the producers, that is green plants. So they may be parasitic हो सकते हैं और holozoic mode of nutrition इनमें present होता है।